वर्ड स्टडी पे बात करने जा रही हूँ मैं। वर्ड स्टडी जो है इस वाली फिगर को देखिए ज़रा, इसको आपको क्या लग रहा है? आपको ये लग रहा है ना कि अ स्टूडेंट इज़ लुकिंग फॉर समथिंग एंड सर्चिंग समथिंग। सो वर्ड स्टडी जो है इस वाली फिगर को आपने माइंड में रखना है व्हेनेवर यू ट्राई टू get the understanding of this concept or you try to explain this concept. Please keep this figure in mind कि this is basically word searching. और वर्ड सर्चिंग क्या है इस पे अभी मैं बात करती हूँ। वर्ड स्टडी इज़ देयर इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग स्पेलिंग्स। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है जिसमें आप यू सिंपली मेमोराइज cat 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 cat, you are memorizing that word and those spellings. So एक आपकी repetition वो इतनी हो जाती है कह कह के ऑटोमेटिकली आप उसको कहने लग जाते हैं। रिमेंबर जितनी आप मेमोराइजेशन में जाते हैं, जितना आप रिपीटिशन में जाते हैं, आप सोच नहीं रहे होते हैं। वो सिर्फ आपकी हैबिट फॉर्मेशन है, बोलते जाना एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन अंटिल इट बिकम्स योर हैबिट। आगे जब जाके हम मैं मेथोडोलॉजीज़ पे बात करूँगी, तो ऑडियो लिंगुअल को आप यू प्लीज़ कीप इन माइंड। This type of learning of spellings that is under the category of traditional approach, वो spellings की learning जो है वो audio lingual में आती है कि simply you listen and you simply go on repeating until it becomes your habit and you automatically start saying cat cat. If we have to spell, it means that is cat. You don't think about that and you just go on saying it because you have repeated it so many times that it has become your habit. Automatically you start saying like this. Word study is an alternative approach. किस तरह alternative है? You pick up the patterns and you work on those patterns. Cohesive, बिल्कुल integrated सी approach है. You pick up a pattern of the word, you think about that, you look at the spellings, you try to find out the other words having similar spellings, similar sounds, उसकी grouping word की क्या कर रहे हैं और आप searching को याद कीजिए कि you have picked a pattern and you are trying to search other patterns also like that. So जब आप एक पैटर्न पे कुछ वर्ड्स को उठा के अब आगे मैं इसको एक्सप्लेन फर्दर करूँगी और करूँगी तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें आप एक वर्ड को उठाते हैं और यू थिंक अबाउट इट्स स्पेलिंग्स, इट्स मीनिंग्स, उसका बिल्कुल आप क्या कहना चाहिए कि अच्छी तरह से यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट वर्ड. Word study, as is evident from the very name, is not only learning the spellings. Spelling is one aspect of this type of study. In fact, you are studying that word very deeply and in detail, whatever you have picked up or your teacher has picked up for you. इसको देखिए इसे और clearly this slide is defining. The teacher defines the sorts and gives the categories for the way items should be sorted. Students will think critically while looking for specific attributes. Meaning, teacher has given you certain word categories and students जो हैं वो देखेंगे. For instance मैं आपको देती हूँ let's say make, lake and or take. तो अब ये तीन वर्ड्स आपके पास हैं. Now आप if you are thinking critically about them तो आप क्या कहेंगे कि ये CV वर्ड्स हैं. Now you know कि CV वर्ड्स क्या होते हैं. consonant vowel. इसको आप इस तरह से करेंगे और फिर आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे कि या मिले से इसमें है तो सही लेकिन जो पहली उसकी है साउंड, पहला जो कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज डिफरेंट बट जो एंडिंग कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज सेम, दैट इज क साउंड इन थ्री ऑफ द वर्ड्स मेक, टेक एंड लेक. फिर आप इसको और क्रिटिकली सोचेंगे तो आप कहेंगे कि जो सेकेंड वाउल साउंड हमारे पास आ रही है वो भी तो सेम है, दैट इज ए. फिर यू नो दैट बाय दिस टाइम नाउ यू हैव गॉट द आइडिया कि डिफ्थोंग्स कौन से हैं, मोनोफोथोंग्स कौन से हैं. तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट द वाउल साउंड इज अ डिफ्थोंग and that is a sound. So this is like, this is take, this is make. So this is how you go in the word study.
उसमें फिर ऑब्वियसली जो एक और बात जो आती है वो ये है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, meaning you have a word pattern, you have a group of the words, and you are looking at them in the manner of investigation. आप पूरा उसके हिस्से बखरे करके देख रहे हैं. अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि you will say कि this is CV word, and then you will say that first consonant sound is different but ending is the same. This is the other point of view you have got after this investigation. सो इस तरह से आप इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं दोज पैटर्न्स को एंड द ऑफ द वर्ड्स एंड द नॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम देयर. सो इस तरह से आप इस इन्वेस्टिगेशन में जा रहे होते हैं. फिर उसमें एक ये भी बात आती है कि यू डोंट लर्न the spelling of one word at a time. This is very important in word study because you are working at groups of words. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी take and make and lake. This is one group. अब इसके ऊपर आप देखिए, इसको आप बढ़ाते जाएं, आप इसमें फेक भी डाल दें, आप इसमें लेक भी डाल दें. सो आप देखिए कितने सारे आ गए ना आपके पास वर्ड्स. तो एक ग्रुप पे आप काम कर रहे हैं और आपको अब एक वर्ड को आप याद नहीं कर रहे जिस तरह के आपने मेमोराइज किया था सी ए टी कैट. यू आर वर्किंग ऑन दिस ग्रुप. वाई दिस ग्रुप? मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया है. मैंने जब आपके ग्रुप बनाया तो मैंने लगा कि इसकी मेरे पास आई हैड सर्टेन पॉइंट्स फॉर मेकिंग दिस ग्रुप कि सीवी वर्ड है और फिर कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट वाली इज डिफरेंट, एंडिंग इज द डिफरेंट. सो आपके sorry, first one is different, ending is the same. So these were the points in my mind. अब आप भी वो उठा रहे हैं उसको. So remember, you are not working on one word, you are working on one group. अब आपके पास जब आप एक ग्रुप के ऊपर काम कर लेंगे, देयर इज अनदर पॉइंट, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हैंड ऑन एक्टिविटी ऑल्सो. मैं ये अब टर्म्स इसलिए बिल्कुल फ्रीली बोल लेती हूँ बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज टर्म्स एंड वी नो दिस टर्मिनोलॉजी वेरी क्लियरली. हैंड ऑन एक्टिविटी भी हो गई ना कि जब आपके पास ग्रुप है उन वर्ड्स का एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट ग्रुप, तो ये हैंड ऑन एक्टिविटी भी हो गई. सो आप उसके ऊपर खुद अब आप ढूंढ रहे हैं कि ये इस ग्रुप में ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है. और इन सब चीज़ों के साथ साथ ये सारे वर्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन रिकॉग्नाइज देम वेरी वेल कि अच्छा जी अब ये आपके पास ये सारे के सारे इकट्ठे आप स्पेलिंग्स उठा लेंगे कि ए एंड ई तीन लेटर्स जो हैं दीज आर द सेम एंड फर्स्ट लेटर आपका फ़र्क हो रहा है और ये सारे इस तरह से आप स्पेलिंग्स सीखेंगे. So this is known as the word study and this is an alternative approach जो कि ट्रेडिशनल में हम मेमोराइज करते हैं बट इसमें हम इस तरह से काम करते हैं. ये भी आपके सामने लिस्ट आ रही है, देखिए ऊपर दोनों साउंड्स हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज साउंड्स उसने ये दो लिस्ट आपने बनाई हैं. अब नाउ यू इफ़ यू लुक एट दीज वंस तो आप इनमें से आप देखें दीज आर टू मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज साउंड्स. और अगर आप हर ग्रुप के नीचे देखें तो अगेन आपको नज़र आएंगे कि मिनी ग्रुप्स बनते हुए नज़र आ जाएंगे. So from this list you can make many mini groups and subgroups. तो उन ग्रुप्स पे जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यू आर इन्वॉल्व इन हैंड ऑन एक्टिविटी, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग दोज ग्रुप्स, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग दोज मिनी ग्रुप्स. You will be looking for the meanings, you will be looking for the vocabulary, you will be looking for the sounds, and as a part of this word study, you are working on the spellings also.